I was very happy with the film which I made. So, you know what happens? The journey for me is always more important than than the destination. Once you arrive at the destination, there's a kind of melancholy, comes seeps into you. So the whole journey. So whenever I'm making a film, for me that I feel the journey should never end. We should just keep on making film and not release it. Just keep making it. But that doesn't happen in life. So, and many a times it has happened that journey has been so painful that uh, when it is over, you feel relieved. This is, I think, one of the rarest uh, uh, incident for me, this film, that I felt so happy and proud, though it was a very, very difficult film to make, and the kind of budget we have vis-a-vis the vision I had. I wanted to create something so spectacular that I haven't done in my films, and which we have not tried in Indian cinema. So Yeah. that was the intention. So it was a very difficult journey. That bull ring, and I was very concerned that the bull fight should look very real, because what I had seen earlier in other films, the animal VFX, it was not good. So I was very scared. So it was a very painful and very you know it took so much out of me physically, emotionally. But even then, when this film ended, I felt so full, so happy, and I wanted to write it on the eve of or before the release, because when the critics and the reviewers, when they start talking about your film, whether good or bad, you get colored, and when the box office result come, it affects you, it affects the whole team, and especially the director. It affects him a lot. To me, it affects a lot. So I thought that if I'll say anything after the release of the film, it will be colored. Either it will feel that now I know what the film what has happened to the film, so I am reacting to that, and I didn't Hmm. want this to be taken as reaction, but as a submission of of my heart, that my HODs, they gave me so much. I wanted to thank them. I knew that the thing about the violence will come because it is a violent film, and I wanted to not justify but give my take on violence. So that's why it was very important for me. And if when the words come from heart, they don't need a validation from anyone else. टाइटल ओ रोमियो है मुझे आई रिमेम्बर इन आवर लास्ट कॉन्वर्जेशन यू सेड कि मैं शेक्सपियर से थोड़ा परेशान हो गया हूँ बट आपको लगता है शेक्सपियर का थोड़ा सा जो हिंट है वो रहता है आपके साथ रूह उधार की तरह बहुत ज्यादा है, मतलब अब तो लग रहा है कि पहले मैं शेक्सपियर के पीछे पड़ा हुआ था, अब शेक्सपियर मेरे पीछे पड़ गए। वो कुछ भी हो, कोई सी भी फिल्म हो, अब मैं उठा के देखता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं शेक्सपियर का कुछ ना कुछ है। आई फॉरगॉट अबाउट द अदर डे आई वाज जस्ट विजिटिंग माय वर्क फॉर समथिंग, for Matru ki Bijli Ka Mandola. And in that also, I realized that, when Imran, he wants to get caught. So at one point, he starts reading Macbeth aloud. When fair is foul and foul is fair, that whole passage. And I realized, that कि मैं शेक्सपियर से मेरा मेरा निजात नहीं है शेक्सपियर से। the scene where he's rescuing Tripti, that the way they both sort of dance around and kill people. So how difficult was that to create, and how much of Shahid's dancing capabilities added to those scenes' beauty? So we knew about Shahid's capability as a dancer, and he's a great dancer, and he's a very good performer. The way he has performed in this film. So first time, I think I had this liberty and intention, my intention also, and ask all three things to be.
a little stylish in my action sequences. And I wanted, because मैं भी बहुत वो रियल एक्शन करके ना मैं बहुत ही पक चुका था, और मैंने बहुत किया है रियल एक्शन, कमीने इससे पहले ऐसा था जिसमें थोड़ा सा स्टाइलाइज था, जिसमें हमारे श्याम कौशल जी ने किया था, विकी के फादर, बहुत ही इज अ ग्रेट एक्शन डायरेक्टर, उसमें हमने थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया था। बट अदरवाइज मेरी सब फिल्मों में रॉ रहा है, क्योंकि हमेशा कभी भी इंटेंशन भी नहीं होती थी। और ये काम बहुत बहुत प्रिसाइज काम है, बड़ा मुश्किल काम है डिज़ाइन का, डिज़ाइन एक्शन का, स्टाइलिश एक्शन का। सो और आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, 2009 के बाद आई थिंक समवेयर अराउंड 2014-15 के आसपास वो डिज़ाइंड स्टाइलिश एक्शन का काफ़ी काम अच्छा शुरू हो गया था। उससे पहले था नहीं, अदरवाइज सब एक्शन डायरेक्टर के साथ मैं लग के काम करता था। आई यूज टू डिज़ाइन विद देम। सो मकबूल में तो कैन यू बिलीव देयर वाज वी डिडंट हैव द बजट टू इवन हैव ए एक्शन डायरेक्टर। तो सारा एक्शन was designed and executed by myself and my डीओपी हेमंत, हम दोनों करते। तो उसमें बहुत एक्टर्स के चोट भी लगी हैं। एक जगह था पीयूष मिश्रा अपने बेटे को जब मार रहा है, तो वहाँ पे उसको हमने, हमारे पास डमी वमी तो कुछ था नहीं, तो हमने उसे एस्ट्रे दे दी। उसने वो एस्ट्रे उसके साइड में फर्श पे मारी, और उसका पूरा हाथ कट गया यहाँ से। सो आई हैव सो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो यूजिंग एक्शन सीक्वेंसेस। पर इसमें पहले से ही मेरा मन था, जैसे जॉन विक की फिल्म्स होती हैं, या टेरेंटिनो की फिल्म्स में, या जो बड़ी एक्शन फिल्म्स में जो स्टाइलिश एक्शन होता है, मेरा वो करने का मन था। तो इसलिए हमने जो एक्शन डायरेक्टर चुना, डानी, जो स्पेनिश, so we worked really hard on every action sequence, and everyone knew that we have Shahid as as our protagonist, as our main lead to do that. So वो इनफैक्ट हम उसका, और उस तरह क्या है, इतना छोटा सा वेपन है, देखने में इट्स सो अनरोमांटिक है ना, कोई रोमांस नहीं है उस तरह के अंदर, दाढ़ी बनाने के काम आता है। तो हमको उसको थोड़ा रोमांटिसाइज करना था। सो उसको हमने, वी यूज टू कॉल इट इन आवर रेफरेंसेस, वी यूज टू कॉल इट डांस ऑफ डेथ। कि when he kills people, he, like a Sufi Darwish, he dances, and he performs his dance of death. This was our reference to every action coordinator we have spoken to. And you see now the way he has used it. We used to call it dance of death, even in Dhak Dhak, even in the end, जहाँ पे वो पूरा अविनाश के चारों तरफ घूम के उसको मारता है, तो इट्स लाइक ए सूफी दरवेश डांसिंग। सो हमारा बहुत ही कॉन्शियस एंड डिजाइंड एफर्ट था ये उसमें। और जो जहाँ वो उसको रेस्क्यू करने वाला पार्ट है, वो सीक्वेंस अनल अरसू करके एक साउथ के हैं, तेलुगु सिनेमा के, उन्होंने किया है। और क्योंकि डानी उसमें आ नहीं पाया था, तो वो एक एक्शन सीक्वेंस अलग से होने वाला था। तो उसमें मैंने उनको, जो एक्शन डायरेक्टर थे अनिल, मैंने उनको बात की कि मुझे ना इसमें पूरा पूरा एक एक डांसिंग फील चाहिए, कोरियोग्राफी चाहिए, लाइक ए वेरी पोएटिक। तो देन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग, जो उसमें गाना आता है, वो 100 साल से सोए न थे, उसका एक पूरा ऑपरेटिक वर्जन मैंने रिकॉर्ड किया। एंड देन उन्होंने मूवमेंट्स किए कि जहाँ उसने उसको लाइक ए बैले सिंगर उसको घुमाया, लाइक लाइक दे आर डूइंग लाइक ए वॉल्ट्स टुगेदर। फिर नीचे जब आके वो दोनों, वो बीच में होती है, उसके चारों तरफ घूम घूम के मार रहा है। सो दैट वी क्रिएटेड, लाइक दिस वाज ऑल वेरी कॉन्शियस। सो वी वांटेड दिस टू बी, बिकॉज एक पॉइंट के बाद एक्शन में क्या होता है कि एक्शन ना बहुत ही रिपीटेटिव होता है। मेरे खुद आंखें, मतलब आंखें तो नहीं बंद करता, पर मुझे खुद लगता है कि व्हाट द हेल यार, हो गया बहुत, अभी आगे चलो। अनलेस यू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, you have to give an extra color into your action choreography. This is what I was trying to do in every action sequence. You see the first that dhak dhak karne laga is Madhuri Dixit behind. Madhuri Dixit and Anil Kapoor, and the dance of he's killing people, and that's also he's dancing around, and he's dancing on the song and killing people, and though in a very violent way. Then in the tunnel in Kathmandu, you see I have brought the element of smoke, you know, तो पूरा स्मोक से भर जाता है। देन इन दिस व्हाट आई टोल्ड यू दैट वो पूरा एक डांसिंग सीक्वेंस लाइक बैले
उस तरह से किया है। और लास्ट में तो उन दोनों का एक ड्यूल, जैसे पुराने ज़माने में शेक्सपियर के टाइम में एक ड्यूल हुआ करता था, दैट वाज द Hmm. इंटेंशन टू ब्रिंग लाइक शेक्सपियर बैक इन दैट। Hmm. Do you think अभी के एरा में we have seen Animal, we have seen धुरंधर, violence ये सवाल नहीं रह गया, हालांकि एज अ डायरेक्टर यू विल गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि बहुत वायलेंट है फिल्म, बट डू यू थिंक एंड रियल लाइफ वायलेंस, पीपल आर सो एक्सपोज टू रियल लाइफ वायलेंस ऑन सोशल मीडिया, ऑल काइंड्स ऑफ, दैट फिल्म में क्या दिख रहा है, इट शुडंट बी अ क्वेश्चन एनी मोर. हाउ डू यू सी दिस आर्ग्यूमेंट ऑन वायलेंस? आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आई मीन इसमें हमको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हम्म. आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे इसमें, इट्स वेरी पर्सनल टेस्ट वाली बात है। हालांकि कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है स्कूल के टाइम का, उसने मुझे मैसेज भेजा कि आई हैव नोन यू फॉर 40 years, आई डिडंट नो यू हैव ए कैपेसिटी फॉर दिस वायलेंस एंड दिस गोर एंड दिस so much blood. And of course he said and the love. when he, I told him, कि पहले लव को लिखना चाहिए था, बाकी चीज़ों को बाद में, because essentially it's a love story in its core. It's a very very deep love story, and very unusual story, love story of unrequited love, where she is obsessed with the love of a dead husband, and he's in love with her. They both can't reciprocate each other, yet the bonding, human bonding, is so beautiful and so deep that they are together. So coming back to your violent question of violence, so इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। एक तो हम लोग हम लोगों के डीएनए में, हम लोग महाभारत से पैदा हुए लोग हैं। आप महाभारत पढ़िए एक बार। हम लोगों ने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है, जिसको हम रेफरेंस मानते हैं, जिसमें शकुनी मामा का, और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम्म. अभी जैसे शकुनी मामा का नाम लेता हूँ तो मेरे दिमाग में गूफी गूफी पेंटल ही आते हैं, जी. या युधिष्ठिर लेते हैं तो वो चौहान ही आते हैं, या तो एक्चुअली वो महाभारत एक्चुअल महाभारत नहीं है। आप महाभारत पढ़िए। महाभारत के अंदर जिस लेवल का वायलेंस है, जिस लेवल का गोर है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से 95% ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, दे डोंट इवन नो व्हाट इज देयर इन द महाभारत। जिस हम्म. तरीके से अभिमन्यु को मारा जाता है, जिस तरह से कीचक को मारा जाता है, उसकी हीरोइन बोलती है द्रौपदी कि जब तक मैं वो जो दुर्योधन का भाई है, उसके उसके खून से अपने हम्म. बाल नहीं धोऊंगी, मैं तब तक अपने बाल धोऊंगी नहीं। और लास्ट में क्या होता है, वो मार दिया, उसका नाम क्या है, दुशासन है उसका भाई का नाम क्या है, जिसके उसके खून से उसको धोना है। जब लास्ट में उसको मार रहे हैं, उसके बाद अर्जुन, वो भीम बोलता है कि नहीं, हमें अपना, वो द्रौपदी आएगी उसके खून से, लिटरली उसके खून से उसके बाल धुलवाते हैं वहां पे। हम उस देश के लोग हैं जहाँ पे महाभारत को पूजा जाता है, जहाँ जी. पे महाभारत माना जाता है। तो जब हम बोलते हैं ना वायलेंस की बात, तो ये, हम चाहे कॉन्शियसली इस चीज़ के अवेयर हो ना हो, वी हैव ए वेरी वेरी बिग capability to absorb violence. One thing. Second thing, the kind of things are happening in our society. Had you ever heard the word lynching? कभी सुना नहीं था हम लोगों ने। मैं मुझे याद भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था लिंचिंग। एक्चुअली हमने लिंचिंग को सुना था अफगानिस्तान के उसमें, कि स्टोन टू डेथ। यहाँ पे बहुत, अब इट्स नॉर्मल, कभी अगर कोई लिंचिंग हो जाती है, और मैं उसका ये नहीं बोल रहा हूँ, उसका कोई पॉलिटिकल लेना देना जी. नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ये हमारे उसका हिस्सा हो चुका है। हमारे सोसाइटी में जो वायलेंस अब इस वक्त है, जिस तरीके से जो रेप में लोग मारे, जिस तरीके से रेप केसेस हम सुनते हैं, जो उस तरह का जो निर्भया के साथ हुआ था, वो ह्यूमन बींग्स का काम है लगता है, बट वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो वायलेंस का जो मुझे उसका आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नहीं, मुझे क्या नहीं. करना है कि का वायलेंस एग्जिस्ट करता है, और बहुत ही भद्दे ढंग से एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। मुझे रियलिटी भी दिखानी थी, आई वॉन्ट टू बी वेरी रियल, बिकॉज और इसका भी मतलब
टेरेंटिनो की किसी फिल्म में था कि रिवेंज रिवेंज इज द बेस्ट डिश सर्व्ड कोल्ड, यू नो. सो या तो एंड आई वांटेड टू बी रियल, एंड मैंने उसमें जस्टिफिकेशन अपने पोस्ट में भी दिया है जी कि जी यू नो जी। द पीपल आई कांट किल in my हम्म real life are I can't confront them. I am slashing their throats. I am splitting their skulls. I am blowing their brains off in my film. हम्म फिल्म का बैकड्रॉप भी है क्योंकि ये गैंगस्टर्स हैं जो कि सुपारी पे मारते हैं. ये गैंगस्टर्स की कहानी है, ये कोई महात्माओं की कहानी नहीं है या किसी बैंक मैनेजर की कहानी नहीं है जिसमें कि फॉर एक्सप्लॉयटेटिव रीजंस दिखाया जा रहा है. इट्स जी। गैंगस्टर्स की कहानी है. एज रियल एज पॉसिबल यू कैन बी, यू हैव टू शो दैट. About music, it's like it's woven in the very fabric of the story, चाहे वो violence हो, चाहे love हो, चाहे कैरम चल रहा है, and he starts having feeling, he catches the feelings, as you call it bukhar in the song, like बुखार है, as you, so वो उसको weave करना, you're a music composer of as great a music composer as a director. सो उसको वीव करना वो भी इंटेंशनल था आपके के लिए इस स्टोरी में। क्योंकि एक तो क्या है कि मैं बहुत बहुत बार ये कह चुका हूँ, फिर एक बार कहने में मुझे हमेशा मज़ा आता है कि जी मैं डायरेक्टर बना ही इसलिए कि मैं अपना म्यूज़िक कंपोजर जिंदा रख सकूँ. नहीं जी। तो मुझे कोई शौक नहीं था डायरेक्टर बनने का, और मुझे अभी भी नहीं है. अगर मैं म्यूज़िक में मैं इतना काम मुझे मिलने लगे कि मैं सिर्फ कि म्यूज़िक ही कर सकूँ, तो मैं म्यूज़िक ही करूँगा. तो मैं हर फिल्म में वो बहाना ढूंढता हूँ, वो जगह ढूंढता हूँ. इसमें मोस्टली गाने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये जो गाना है हल्का हल्का फीवर है, ये गाना हमने बाद में बनाया है, फिल्म के रिलीज से कोई 3 महीना पहले ये गाना बना है. क्योंकि वो लव स्टोरी अंडरलाइन नहीं हो रही थी, क्योंकि इट वॉज सो सटल. एंड शाहिद बहुत परेशान रहता था सेट के ऊपर, वो मुझसे बोलता था कि आप इतना सटल कर रहे हो, ये किसी को समझ में नहीं आएगा ये, कि कि देर इज दैट आई एम फॉलोइंग इन लव विद हर. So I told him that some things you should leave to the craft. हम्म एंड वी और तभी उसका मज़ा आता है कि हर चीज़ को बयान करने की ज़रूरत नहीं है लफ्ज़ों में, या बहुत ही जेस्चर्स में, या खुल के उसको दिखाने में लोगों को. मैंने कहा कुछ चीज़ें इतनी सटल होनी होनी चाहिए सिनेमा में, जो कि मुझे लगता है कि वो दे शुड बी जस्ट फेल्ट, कि आपको अंदर लगा कि अरे यार इसको ऐसा लग रहा है शायद. और अगर आप वो कर दें तो देन इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस, कि अगर आपने फील करा दिया कि इस बंदे को ऐसा हो रहा है. तो वो लव स्टोरी को लाइन करने के लिए मैंने पहले बैकग्राउंड स्कोर किया. जैसे उसमें कैरम वाला सीन जो है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने पहले रिकॉर्ड किया था. जो उसमें फ्लूट प्लेयर थ्रू आउट बैठा रहता है थ्रू आउट द सीन्स, वो मैंने पहले वो ओपनिंग शॉट से ही है वो। रिकॉर्डर जो बजाता है, वो इट्स कॉल्ड रिकॉर्डर. आई रिकॉर्डेड दैट पीस एंड वी यूज्ड टू प्ले इट ऑन आवर सेट्स. तो इट वाज ए वेरी वेरी डिजाइंड अप्रोच. पर कुछ गाने जैसे मैंने बताया कि वो प्री क्लाइमैक्स में जहाँ वो तृप्ति को रेस्क्यू कर रहा है, वहाँ मुझे लगा कि वी शुड शूट दिस शूट आउट ओवर अ सॉन्ग, इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड, कि पहले हम कर लें और फिर गाना बनाएं. तो अगर मैं ये एक्शन डायरेक्टर को गाना रिकॉर्ड करके दूंगा तो वो उसको वैसे कोरियोग्राफ करेगा. तो इट वाज मोर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियोग्राफी एंड एक्शन. सेम वे म्यूजिक को मैंने उस तरीके से ट्रीट किया. जैसे जलवा जो गाना है, जिसमें जलवा मेरे आशिक का बड़ी धूम से निकला, सेकेंड हाफ में जहाँ वो ड्रग लैब में जाके रेन में गन से लोगों को मार रहा है, वो गाना मैंने पहले रिकॉर्ड किया था. दैट सॉन्ग भी शॉट ऑन ऑन सॉन्ग. तो दैट्स वाई, इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है इस फिल्म में, क्योंकि हमने वो नहीं किया कि पहले शूट किया फिर गाना किया, हमने गाना करके गाने के ऊपर शूट किया. और उमेश इज डूइंग वेल इन थिएटर्स, यस. 60 प्लस आई कमा लिए हैं, तो या 65 प्लस बहुत. आई थिंक. Yeah, सो so I think this is going to be my most successful films. So बेचारे क्रिटिक्स जिन्होंने बुराई की है, उनका दिल तोड़ने के लिए ये बात बोलनी ज़रूरी है कि उनको जैसी भी लगी हो, ये फिल्म इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ माई लाइफ. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म. मैं बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ द वायलेंस एंड द लव स्टोरी आई हैव क्रिएटेड इन दिस. एब्सोल्युटली सर। एक और चीज है सर, इस फिल्म में आप शाहिद के अलावा जिन जिन लोगों से काम कर के साथ काम कर रहे हैं, वो वर्चुअली आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. सो वाज दैट इंटरेस्टिंग टू वर्क दिस सेट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल, एंड राहुल देश पांडे कैसे आए, और तृप्ति कैसे आई, और फरीदा जी कैसे आए?
एक्चुअली पहले मैं नाना से शुरू करूंगा कि नाना जी मेरे बहुत नाना। पुराने दोस्त हैं। 25 साल, 27-28 साल पुरानी दोस्ती होगी। जब हुतुतु कर रहे थे हम लोग, मैं उसका म्यूजिक कर रहा था, नाना उसमें लीड थे। गुलजार साहब की फिल्म थी। तो तब से नाना की दोस्ती थी, पर कभी रोल नहीं बन पाया, कभी निकल नहीं पाया कुछ ऐसा रोल कि हुआ। तो नाना के साथ तो हमेशा जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या पर्सनली कहीं मिलते थे तो बहुत गालियां देते थे नाना खुल के कि तुम्हारे जैसा कमज़ोर आदमी नहीं देखा तुमने, मुझे आज तक कभी किसी रोल के लिए ऑफर तक भी नहीं किया है, ये तो सोचो, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो नाना के साथ तो नाना तो ग्रेट एक्टर हैं ही, नाना के साथ बहुत मज़ा आया। फरीदा जी के हम लोग बचपन से फैन हैं, हम लोग बड़े हुए हैं उनको देख के। और वो एक तो इंसान इतनी प्यारी हैं, और वो जो उनका प्यारापन है वो बिल्कुल भी ओढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए आप अभी भी देखिए वो एकदम गुड़िया की तरह छोटी डॉल लगती हैं वो एकदम, जो आपने अभी भी। बोला भी है फिल्म में, हाँ बिल्कुल, एकदम दिखती शक्ल बुढ़िया है से पर है गुड़िया। अकल से बुढ़िया, शक्ल से गुड़िया। तो जी एकदम जी। वो डॉल ही लगती हैं बिल्कुल एकदम, और वो ऐसी ही हैं वो। तो बड़ा मन था, और बड़ी अच्छी एक्टर हैं वो, बहुत अच्छी एक्टर हैं वो, फरीदा जी। तो मेरा मन था फरीदा जी के साथ काम, तो एंड आई वांट आल्सो, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई वांटेड टू री इन्वेंट माई सेल्फ। कि मुझे जैसे बहुत बहुत मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बोला कि अरे यार, दोस्तों ने भी बोला, और जो मेरे वो कमर्शियल फ्रेंड्स हैं जो मेरी फिल्म को देख के कभी फ़ोन नहीं करते हैं, उन्होंने मुझे, मेरे एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड हैं गुड़गांव में, पम्मी भाई नाम है उनका, वो मुझे जानते हैं 35 साल से, ही इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर। और कभी उन्होंने मेरी फिल्म को लेके कभी बात नहीं की, बिल्कुल भाई की तरह। इस बार उन्होंने फ़ोन किया कि देख, 35 साल में मैं तुझे पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ, ये फिल्म तो तेरी फिल्म ही नहीं लगती है, इतनी बढ़िया फिल्म है। तो मैंने कहा ये क्या कॉम्प्लीमेंट हुआ मम्मी भाई। बोलते हैं कि ये इतनी बढ़िया फिल्म है कि तेरी फिल्म ही नहीं लगती है। तेरी फिल्म तो एकदम एकदम स्लो स्लो चलती है, सब कुछ होता है, कहाँ गाने नहीं आते ठीक से, बैकग्राउंड में आ जाते हैं, इसमें सब लोग खुल के नाच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो ये होती है यार फिल्म, और ये देख तेरी फिल्म चलेगी। तो आई वॉन्टेड टू री इन्वेंट माई सेल्फ कि दैट्स वाई आई थिंक मैं एक बात और है आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी कोई रिव्यू नहीं पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सालों से मैंने रिव्यूज़ पढ़ने बंद कर दिए, बिकॉज वो इतने पर्सनल लेवल पे वो लोग बातें करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें तो ठीक है, बट उसमें पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, वो ना भी आए पर्सनल चीज़ें, आपका फिल्म आपकी इतनी पर्सनल होती है कि कोई उसके बारे में कुछ भी बोले आपको बुरा लगता है। तो जी। मुझे लगा कि कैसे इससे बचा जाए। तो उसमें ये हुआ कि अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़ने बंद करो, और बुरे रिव्यूज भी पढ़ने बंद करो, तो ना अच्छा पढ़ के आपका ईगो इन्फ्लेट होगा, और ना आपका बुरा पढ़ के आपकी वो डिफ्लेट होंगे। तो मैंने रिव्यूज पढ़ना ही बंद कर दिए। तो इसलिए मुझे पता नहीं किसने क्या बोला है मुझे, और 3-4 मैंने अपने सब असिस्टेंट दोस्तों को बोला है, मुझे 4 महीने बाद बताना किसने क्या बोला था। बट आई थिंक जो मुझे थोड़ा सेंस एक आता है ना, आपको सिक्स सेंस हवा में आता है, उसमें मुझे लगता है उनको तकलीफ ही है कि मेरे री इन्वेंशन से। क्योंकि यहाँ पे दे वांट टू केज यू इन योर पर्सनैलिटी दे हैव मेड ऑफ यू। It's they don't know there's a difference between an individuality and personality. So they have created a personality. They don't know who am I. मुझे, मैं मनमोहन देसाई के सिनेमा पे बड़ा हुआ हूँ। मुझे आई लव्ड मनमोहन देसाई का सिनेमा, परवरिश, और अमर अकबर एंथनी, वो सब दे यूज टू बी सुहाग। वो फिल्मों पे मैं हुआ हूं, तो मेरा परवरिश उसमें हुई है। ये तो मैं आते आते मेरा, मैं पता नहीं कहाँ से मेरी इतनी इंटेलेक्चुअल इमेज बन गई। और थोड़ा मेरा ये है कि मेरे एस्थेटिक्स, बिकॉज ऑफ माई पोइट्री, माई लव फॉर पोइट्री एंड माई लव फॉर म्यूजिक, मेरे एस्थेटिक्स दूसरी तरफ बहुत डीप हो गए। मगर हम्म सिनेमा में मैं बिल्कुल अपना देसी हूँ यहाँ पे। हम्म और फिर जिस तरीके से मैंने जो फिल्में बनाई, वो फिर एक तरह की फिल्में बनती चलेंगी। तो दिस वॉज द टाइम फॉर मी टू री इन्वेंट माई सेल्फ, विच आई ट्राइड टू डू। वेदर आई थिंक ऑन बॉक्स ऑफिस आई सक्सीडेड। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज दैट इज वॉट आई वॉन्टेड। नोबडी एक्सपेक्टेड कि मैं इस तरह से बैलेंस क्रिएट करूंगा। नोबडी हम्म एक्सपेक्टेड कि मैं इस तरह के आइटम गाने करूंगा, यू नो हम्म एंड आई वांटेड टू डू दैट, आई वांटेड टू ब्रेक आउट ऑफ हम्म। द मोल्ड आई बीन डूइंग। बहुत हो गया था, आई जो जस्ट आपको वांटेड टू। शेक्सपियर वाले मोड में कास्ट कर दिया गया था, मकबूल और हैदर और हाँ ओमकारा अच्छा, के। पर अगर देखिए तो अब मैंने ओमकारा में आइटम गाने किए, बीड़ी जले ले। आप मुझे छोड़िए, शेक्सपियर ने आइटम गाने किए हैं,
जो बीड़ी जले ले गाना है, वो एक्चुअली सिचुएशन है उसमें ओथेलो प्ले में, कि वो उसको जी कैसियो को दारू पिला देता है वो, और देन दे सिंग, तो वो सिचुएशन वहीं से आई है। जी 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 तो गानों के तो भैया, तो इसलिए शेक्सपियर तो खूब हमारे, वो भी बड़े कमर्शियल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जी। उनकी मास्टर ये थी कि वो कमर्शियल के साथ वो डीप इतनी बात करके जाते थे ना हर एक में। व्हाट नेक्स्ट फॉर विशाल भारद्वाज? अभी तो आप मसूरी में है, रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर जब हाइबरनेशन से निकलेंगे तो क्या निकलेगा उसके बाद? मेरा ना एक, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगा एक्चुअली, बट मेरा जैसे महाभारत का जिक्र हुआ ना, हम्म। चलिए मैं आपको एक्सक्लूसिव ये चीज़ देता हूँ उसको मैं, जी जी। मेरा महाभारत को कंटेम्प्रेरी टाइम में अडेप्ट करने का मन है, पूरी महाभारत को। सो और कंटेम्प्रेरी उसमें करने का मन है, कि मुझे लगता है कि, पर वो इतना बड़ा काम है कि मैं काफ़ी उस पर काम किया हुआ भी है, बट आई डोंट नो वेदर दैट विल बी माई नेक्स्ट और नॉट। बट अभी तो वो टाइम, अभी टाइम इज़ टू सेलिब्रेट ओ रोमियो।